Hello, my dear students. Today we will discuss the important concept from science and technology during the period of 8th to 14th of March. Let's start and see what all topics we will cover. In this video, we will cover the topic of Radico, El Salvador becoming malaria free, diphtheria, agriculture voltage technology, this quasar that was in news, India's biggest floating solar power plant, cybercrime volunteer framework, Kala Azar, Indian astronauts under training, that is the mission Gaganyaan. We will discuss about it. Then we will discuss about supercomputers and a recent an asteroid which was seen, which will pass very close to the Earth. In the defense section, we will discuss the air independent propulsion system and the Scorpion class submarine. So let's start with the topic. The first topic of science and technology is Red Eco. So what is this Red Eco? ये है क्या? It is a Trojan which is allegedly operated by the Chinese firm. This is a Trojan. So actually in the previous classes we have also discussed the type of uh, malware that can be uploaded on a system. We have discussed about Trojans, we have discussed about virus and other kind of malwares. So Trojan is basically a software which is designed to look like a harmless software, but actually its purpose is something different. So when it gets into the computer, a user usually downloads it thinking to be a genuine software for some other reason, but when it is applicable on a system, when it is installed on a system, it leads to certain malfunctioning of the system. It can either steal the personal information, or it can corrupt the system, or it can lock the system. It basically depends on what kind of Trojan is designed. So in this topic, what is the important thing to note is that these all terms, axiomatic asymptote, then domain spoofing, then shadow pad, so these are the terms which can be asked in the prelims examination, so you must be aware of that. So a simple one liner question can be that recently axiomatic asymptote was seen in news and it is related to which of the following. So the answer will be malware or Trojan in this case. Now that shadow pad is built to target supply chain infrastructure. So all these are different Trojans or malware which is in news. So you must have and basically you must remember the names, so that if UPSC asks in the prelims, then you are able to guess the right answer. Then another thing is that pre-positioning. This is also in news. So what is this pre-positioning? Pre-positioning is basically installing malwares on a particular system beforehand, and until the time this malware receives the signal, until that time they are inoperational. Basically there is a malware on a particular system, but until it receives proper signal, it is doing no harm to the computer, and as soon as it receives a signal, it starts harming the system. So this is called pre-positioning. This can be used in cyber warfare. Basically over a period of a long stretch of time, an enemy can install certain malwares on the systems of the other country, and during the time of war it can just give the signal and all the malwares can start acting up together. ठीक है, तो ये एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो जाएगी किसी भी कंट्री के लिए. देन नेक्स्ट टॉपिक इज एल सल्वाडोर बिकमिंग मलेरिया फ्री. तो इसमें आपको दो तीन कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि एक तो मलेरिया फ्री स्टेटस कैसे मिलता है, दूसरा मलेरिया के बारे में आपको पता होना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ डिजीज इट इज़. तो बेसिकली एल सल्वाडोर हैज़ बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड बाय मलेरिया फ्री. किसने डिक्लेयर किया? WHO ने. तो अब मलेरिया फ्री स्टेटस कितने कंट्रीज़ को मिला हुआ है? 38 कंट्रीज़ को. एंड इसका क्राइटेरिया क्या है कि देयर हैव बीन नो लोकल केसेस फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स. 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक अगर कोई केस नहीं हुआ है तो उस कंट्री को मलेरिया फ्री डिक्लेयर करेगा कौन? WHO. नाउ इंडिया इज येट टू बी डिक्लेयर्ड एज मलेरिया फ्री. सर्टिफिकेशन फॉर एलिमिनेशन, इसके देखो कुछ क्राइटेरिया है कि वही जैसे 0 लोकल केसेस और ट्रांसमिशन फॉर द 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स. दिस इज द मेन क्राइटेरिया. 3 साल तक कोई लोकल ट्रांसमिशन, लोकल केस नहीं होना चाहिए. मलेरिया इज अ सीरियस डिजीज बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग किलर्स. सबसे बड़ा जो डेथ का कारण है वो मलेरिया है. और दूसरा इसका एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ना, ऐसे ऐसे कंट्रीज जहाँ पे ये ट्रॉपिकल डिजीजेज नहीं थी, जहाँ पे ट्रॉपिकल मॉस्किटोज नहीं थे, वहाँ पे भी ये मॉस्किटोज अपने पहुँच रहे हैं और ट्रॉपिकल डिजीजेज फैला रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कोल्ड कंट्रीज़ का टेम्परेचर भी रिलेटिवली बढ़ जा रहा है.
तो वहाँ पे भी मॉस्किटोज ब्रीड कर पा रहे हैं और ये ट्रॉपिकल डिजीजेस फैला रहे हैं। तो इसलिए भी मलेरिया और जो अदर ट्रॉपिकल डिजीजेज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि ये नए नए एरियाज में भी फैलने के लिए तैयार हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अब इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एक तो वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट है 2020 की, ठीक है। फिर इसके बाद एक E2020 ग्रुप है, ये ग्रुप है 21 कंट्रीज का, जो 2016 में बना था, और इनके अंदर पोटेंशियल है मलेरिया को एलिमिनेट करने का बाय 2020, ठीक है। तो आइडिया क्या है कि ये वो कंट्रीज हैं जहाँ पे ज़्यादा मलेरिया के इंसिडेंट्स होते हैं, अगर, ठीक है, अगर वहाँ पे मलेरिया को एलिमिनेट कर दिया गया तो बाकी पूरे वर्ल्ड में से हम लोग मलेरिया को एलिमिनेट कर सकते हैं। इंडिया के बहुत सारे इनिशिएटिव है मलेरिया के लिए, जैसे कि नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन। उड़ीसा का प्रोग्राम है ये एक, ये भी न्यूज़ में है, दुर्गम में अंचलरे मलेरिया निराकरण, दमन दमन इनिशिएटिव। तो ये पूछ सकता है आपसे एमसीक्यू में इन द प्रीलिम्स कि जो ये दमन इनिशिएटिव है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये मलेरिया एलिमिनेशन से रिलेटेड है। अब मलेरिया के बारे में कुछ फैक्चुअल चीज़ें कि मलेरिया इज कॉज्ड बाय अ प्लाज्मोडियम दैट इज अ प्रोटोजोआ, एंड ये कौन सा प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपलम। ऐसे बहुत अलग अलग टाइप्स के प्लाज्मोडियम होते हैं जिनकी वजह से मलेरिया फैलता है। इसमें से मोस्ट कॉमन जो है वो प्लाज्मोडियम फैल्सिपलम है। इसको स्प्रेड कौन करता है, फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो, फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो, और ये सिर्फ फीमेल ही स्प्रेड करती है इसको, मेल एनोफिलीज जो मस्कीटो होता है वो इसको स्प्रेड नहीं करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फीमेल क्यों स्प्रेड करती है, क्योंकि ड्यूरिंग एग लेइंग टाइम, जब वो एग ले करती है तो उस टाइम पे फीमेल को रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की, और प्रोटीन उसको अपने सोर्स, अपने नेचुरल फूड सोर्स से नहीं मिलता, जो कि फ्रूट्स के नेक्टर्स वगैरह होते हैं। तो उसके लिए वो ब्लड सकिंग पे आ जाती है और जो है इंसानों को काटती है और वो खून चूसती है एनिमल्स को, जिसकी वजह से उसको प्रोटीन रिक्वायरमेंट उसकी फुलफिल हो जाती है। अभी WHO ने एंडोर्स किया है कि ग्लोबल अवेयरनेस फैलानी चाहिए हमको सिर्फ 4 डिजीजेस को लेकर, जैसे कि HIV, TB, मलेरिया और हेपेटाइटिस। इन 4 डिजीजेस को लेकर ग्लोबल अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये WHO ने एक्सेप्ट किया है। फिर वर्ल्ड की फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन भी बन चुकी है, इसका नाम है मॉस्क्यूरिक्स। ये आपको पता होना चाहिए। मॉस्क्यूरिक्स पूछ सकता है कि व्हाट इज मॉस्क्यूरिक्स, इट इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन, और इसका ट्रायल भी चल रहा है, और ये वैक्सीन को इफेक्टिव भी डिक्लेयर किया गया है, बट अभी भी इस पर रिसर्च कंटिन्यू है, ठीक है। अब मलेरिया जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, मलेरिया लिवर को इम्पैक्ट करता है। अगर मलेरिया का जो ऑर्गेनिज्म है, कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्लाज्मोडियम फैल्सिपरम, वो आपकी बॉडी में अगर आ गया तो अल्टीमेटली इट विल अफेक्ट द लिवर को पूरा खराब कर देगा, एंड दिस कैन ऑल्सो लीड टू डेथ इन सर्टन केसेस, ठीक है। तो ये जो लिवर जो है इसमें सेकंड स्टेज होती है। तो मलेरिया की जो पैरासाइट है उसकी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। तो एक स्टेज जो है इसकी मेजर स्टेज होती है ह्यूमन लिवर में या फिर एनिमल लिवर में रहती है, तो वो उसकी वजह से आपका लिवर को ख़राब कर सकता है। फिर नेक्स्ट एक सिमिलर एक और डिजीज़ है डिप्थेरिया, ठीक है। तो डिप्थेरिया जैसे कि बैक्टीरिया से होती है। अब यूपीएससी में देखो आपसे ये डिजीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा, बस यही पूछ सकता है कि डिप्थेरिया इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, है ना। ऐसे ही पूछ सकता है कि पोलियो इज कॉज्ड बाय वायरस, ठीक। तो ऐसे ही पूछ सकता है कि हेपेटाइटिस इज कॉज्ड बाय वायरस। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डिजीज़ कौन सा ऑर्गेनिज्म करता है, ये एमसीक्यू में आ सकता है यूपीएससी में, ठीक है। ये एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इसके बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस यही पता होना चाहिए कि ये बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। ट्रांसमिशन कैन बी थ्रू डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट फ्रॉम ब्रीदिंग और एरोसॉइल्ड सिक्रीशन, मतलब कि जैसे आजकल कोविड फैल रहा है वैसे ही डिप्थीरिया भी फैलता है ना, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी हो सकती है, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर वोल्टेज टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी रिसेंटली न्यूज़ में थी, ये ICAR ने डेवलप करी है। ICAR के सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर ने ये टेक्नोलॉजी डेवलप करी है। तो अब ये टेक्नोलॉजी है क्या, ठीक है। इसमें एक ऐसी वोल्टेज पल्स्ड इलेक्ट्रिक फील्ड्स बेसिकली निकालते हैं, ऐसी वोल्टेज जनरेट करते हैं जिसकी वजह से पल्स्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, और उस फील्ड की वजह से
जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर कुछ बायोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं, बायोलॉजिकल इफेक्ट्स। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट स्टडी है कि किस तरीके से हम लोग वोल्टेज, हाई वोल्टेज से एक ऐसी पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट्स के ऊपर कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस आए। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अगर इसकी स्टडी हमने कंप्लीट कर ली और हमने इसको मास्टर कर लिया तो अल्टीमेटली हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करके हम लोग प्लांट्स की ग्रोथ को रेगुलेट कर सकते हैं और उनकी जो यील्ड है या प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे इसमें लिखा है कि सीड जर्मिनेशन, प्रमोशन, प्लांट ग्रोथ एक्सेलरेशन, ये सब चीज़ हम अचीव कर सकते हैं अगर या इनएक्टिवेशन ऑफ बैक्टीरिया इन द सॉइल, सॉइल में से बैक्टीरिया को मार सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं अगर हमको ये मैकेनिज्म समझ में आ जाए कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लांट्स की ग्रोथ को अफेक्ट करती है। ऐसे ही इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुसुम प्रोग्राम जो है ये इसमें मेंशन्ड है, क्योंकि कुसुम प्रोग्राम जो है वो फार्मर्स को एक ऑप्शन देता है क्या करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट और सेल करने के लिए। तो आपको ये बस पता होना चाहिए कि कुसुम क्या है। तो बेसिकली इट प्रोवाइड्स एडिशनल इनकम टू द फार्मर्स, फार्मर्स को एडिशनल इनकम देता है बाय गिविंग देम ऑप्शन टू सेल एडिशनल पावर टू द ग्रिड थ्रू सोलर पावर प्रोजेक्ट सेट अप ऑन देयर बैरन लैंड्स। तो फार्मर्स के जो बैरन लैंड्स होते हैं या फार्मर्स का जो एग्रीकल्चरल फील्ड है जो कि साइड में जैसे जहाँ पे जगह मिल जाती है, तो फार्मर्स वहाँ पे सोलर पावर प्लांट लगा सकते हैं और उन सोलर पावर प्लांट से जो भी एनर्जी आती है आइदर द फार्मर कैन यूज इट फॉर देयर सोलर पंप्स for irrigation purposes, and additional energy can be sent to the grid, electricity grid, and the farmer will get an income for selling that additional electricity। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पीएम कुसुम का। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पीएम कुसुम किस चीज़ के लिए है। इसके दो टारगेट हैं, एक तो सोलर कैपेसिटी, सोलर एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाना है, जैसे कि 30 गीगावाट तक बढ़ा देंगे हम 2022 तक। दूसरा है कि फार्मर की इनकम भी बढ़ा सकते हैं हम लोग, एडिशनल इनकम हम लोग कर सकते हैं फार्मर्स की। ठीक है, तो ये पीएम कुसुम के बारे में फैक्चुअल चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ सकते हो। ये फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है क्वाज़र के ऊपर। क्वाज़र अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, जैसे कि रेडियो लाउड क्वाज़र, ये चीज़ एक न्यूज़ में थी। तो आपको बस ये पता होना चाहिए पहली बात तो कि क्वाज़र होते क्या हैं और ये रेडियो लाउड क्वाज़र क्या होता है। ठीक है, तो क्वाज़र ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं, क्वाज़र का फुल फॉर्म होता है क्वाजी स्टेलर, क्वाजी स्टेलर। ठीक है, क्वाजी स्टेलर, तो इसका मतलब है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि स्टार की तरह दिखते हैं बट दे आर नॉट एक्चुअली स्टार्स। ठीक, तो इनकी थोड़ी हिस्ट्री जानते हैं कि पहले जब हम लोग इतनी अच्छी टेलीस्कोप नहीं हुआ करती थी तो साइंटिस्ट लोग जब स्पेस को देखते थे तो उनको बहुत सारे स्टार्स दिखे जो कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली ब्राइट थे। तब जब हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई, हमने और ध्यान से देखा तो हमने देखा कि ये जो स्टार्स हैं ये एक्चुअली में बहुत दूर हैं, फिर भी ये इतने ब्राइट हैं। तो जब और स्टडी करी गई तो पता चला कि ये एक्चुअली में स्टार है ही नहीं, ये एक बहुत बड़ी गैलेक्सी का सेंटर है, गैलेक्सी का सेंटर है जो कि बहुत ज़्यादा ब्राइट है, बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है। तो फिर इसकी स्टडी करी गई और ये पता चला कि हर एक जो बड़ी गैलेक्सी है उनके सेंटर में देयर इज अ ब्लैक होल, ब्लैक होल, और उस ब्लैक होल में जितना भी मटेरियल अंदर जा रहा है, जो भी ब्लैक होल मटेरियल एब्जॉर्ब कर रहा है, उसकी वजह से ब्लैक होल का सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। द टेम्परेचर इज वेरी हाई सराउंडिंग द ब्लैक होल। अब उस हाई टेम्परेचर की वजह से जो भी गैसेस होती हैं उस एरिया में वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाती हैं और हीट होने की वजह से वो करने लग जाती हैं ग्लो। तो इसकी वजह से जो मैसिव गैलेक्सीज है उनके जो सेंटर होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमको ये मिलता है, ब्लैक होल, एक ब्लैक होल मिलता है और उसके चारों तरफ की एरिया को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग देखा जाता है। तो ये कोई कोई गैलेक्सी इतनी बड़ी होती है कि वो बहुत ज़्यादा ब्राइटली ग्लो करती है, तो उन गैलेक्सीज के सेंटर्स को हम लोग क्वाज़र बोलते हैं। तो जैसे इसमें आगे लिखा भी हुआ है कि क्वाज़र्स आर एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई। ठीक है, ये देखो ये लिखा हुआ कि वाटर क्वाज़र के बारे में लिखा हुआ है, क्वाज़र्स आर एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई, मतलब बहुत बड़ी गैलेक्सीज के सेंटर में जहाँ पे ब्लैक होल है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की वजह से बहुत लाइट निकल रही है, उसको हम लोग बोलते हैं क्वाज़र। तो देयरफॉर उनका नाम भी पड़ा है क्वाजी स्टेलर।
अब ये क्या है, राउड रेडियो लाउड क्वाजर, ऐसे क्वाजर जो अपने सेंटर से रेडियो रेडियो वेव्स निकाल रहे हैं, रेडियो वेव्स, उनको उनको हम लोग रेडियो लाउड क्वाजर बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि सर क्वाजर के सेंटर में तो ब्लैक होल है और ब्लैक होल से तो कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता, तो ये रेडियो वेव्स कैसे बाहर निकल रही हैं? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो गैलेक्सी के सेंटर में है ब्लैक होल से कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता, तो ये रेडियो वेव कैसे बाहर निकल रही है, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या है कि जब ब्लैक होल के जो ब्लैक होल बहुत बड़े होते हैं, तो वहाँ पे चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। जैसे सारा मटेरियल रिवॉल्व कर रहा होता है, तो साथ में इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि बहुत लाइट होते हैं, तो ये इतनी तेजी से रिवॉल्व करते हैं कि कई बार ये स्पीड ऑफ लाइट के आसपास पहुंच जाते हैं। और जब ये स्पीड ऑफ लाइट के आसपास पहुंच जाते हैं, तो उस केस में ये एक हेलिकल वे में रोटेट कर रहे हैं, और इस रोटेशन की वजह से इनके अंदर से यहाँ से एक रेडियो वेव निकलती है। तो जब भी कोई चार्ज एक्सेलरेट होता है, जब भी कोई चार्ज मूव होता है, तो उससे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है। इसी तरीके से जब ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत हाई स्पीड में रोटेट कर रहे होते हैं नियर द स्पीड ऑफ लाइट, तो वहाँ से एक रेडियो वेव निकलती है। और यही रीज़न है कि इन गैलेक्सीज के सेंटर से एक रेडियो वेव निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो इनको हम लोग बोलते हैं रेडियो लाउड क्वाजर्स। अब एक नेक्स्ट थिंग समझने की है कि रेड शिफ्ट एक्चुअली में क्या होती है, रेड शिफ्ट। ठीक है, तो ये चीज़ समझते हैं कि व्हाट इज दिस रेड शिफ्ट। कोई भी अगर लाइट सोर्स है, ठीक है, तो अगर ये लाइट सोर्स एक वेव निकालेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, तो अगर ये लाइट सोर्स हमसे दूर जा रहा होगा, ठीक है, इट इज मूविंग अवे फ्रॉम अस, तो जो ये वेव है, इसकी जो वेवलेंथ ये हो जाएगी इंक्रीज। इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हो जाएगी डिक्रीज। ठीक है, और अगर ये हमसे हमसे टुवर्ड्स आ रहा होगा, टुवर्ड्स, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इंक्रीज और वेवलेंथ हो जाएगी डिक्रीज। तो इस फिनोमेना को बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट, अब अगर लाइट के केस में हम देखते हैं, तो अगर कोई स्टार है और ये हमसे दूर जा रहा है, तो इसकी जो वेवलेंथ आ रही है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही है, उसकी वेवलेंथ हो जाएगी लार्ज, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसकी जो वेवलेंथ जब लार्ज हो जाएगी, तो अल्टीमेटली इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, रेड एंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, जो कि विजिबल वाला अगर हम कंसिडर करें, तो उसका होता है वेब ग्योर। उसमें ये सारे कलर्स होते हैं, जी वाई ओ वेब ग्योर। तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो जो रेड है, इसकी जो वेवलेंथ है, ये सबसे सबसे होती है लार्ज, और वॉयलेट की जो वेवलेंथ है ये होती है स्मॉल। ठीक है, वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी होती है लार्ज और रेड की फ्रीक्वेंसी होती है स्मॉल। वेवलेंथ रेड की लार्ज होती है। तो जब भी किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ बढ़ेगी, तो वो रेड की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है। तो इसलिए कोई भी दूर वाले डिस्टेंट स्टार से जो भी लाइट आ रही है, तो अगर वो स्टार हमसे दूर जा रहा है, तो उसकी वेवलेंथ हमें रेड की तरफ दिखाई देगी, क्योंकि वो हमसे दूर जा रहा है, उसकी वेवलेंथ एक्सपेंड हो जाएगी, देयरफॉर वो रेड की तरफ दिखाई देगा। ठीक है, तो इस फिनोमेना को बोलते हैं हम लोग रेड शिफ्ट। ठीक, तो अब ये क्योंकि क्वाजर भी हमसे दूर जा रहा है, तो ये हो गया रेड शिफ्ट। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है इसमें कि क्वाजर्स आर वेरी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वेरी इन फार अवे गैलेक्सीज, वो मैंने बता दिया। ठीक है, बहुत सारे क्वाजर्स जो हैं रेडियो वेव एमिट नहीं करते, सिर्फ 10% ऑफ द क्वाजर्स ही रेडियो वेव एमिट करते हैं। जो क्वाजर्स रेडियो वेव एमिट करते हैं, दे आर कॉल्ड एज रेडियो लाउड। Those quasars which do not emit radio waves, they are called as radio quiet. The quasars which emit radio waves are called radio loud. The quasars which do not emit radio waves are called radio quiet. ठीक है, तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन, दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टेलीस्कोप विच वाज यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द इंडियाज बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। अभी ये पावर प्लांट वाज इनॉग्रेटेड इन रामागुंडम इन तेलंगाना, एंड इट्स कैपेसिटी विल बी 100 मेगावाट।
जैसे कि जो ये आप देख सकते हो, जो भदला सोलर पावर प्लांट है जोधपुर में, ये वर्ल्ड्स बिगेस्ट है सोलर पावर प्लांट, बट ये फ्लोटिंग नहीं है। तो फ्लोटिंग के कंसिडर करोगे, द फ्लोटिंग वन इज दिस रामागुंडम इन तेलंगाना, and its capacity will be 100 megawatt. The next topic is Cyber Crime Volunteer Framework. Recently, this framework was launched as a part of Cyber Hygiene Promotion. Cyber Hygiene Promotion क्या है? To clean the cyber space. जितने भी साइबर स्पेस में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने वायरसेस वगैरह हैं और जो करप्ट जो सिस्टम करप्ट हो गए हैं, उनको क्लीन करना है। तो ये साइबर हाइजीन प्रोजेक्ट है। इसके अंडर साइबर क्राइम वॉलंटियर फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया। इसके अंदर साइबर ग्रीवियंस पोर्टल होगा जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखेगी, और बेसिकली जितने भी अनलॉफुल कंटेंट है उसको आइडेंटिफाई करके उनको रिमूव करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देगी। ठीक है, तो ये हो गया साइबर रिलेटेड। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिसेंटली नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल भी लॉन्च किया था। ठीक है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए कि बस इतना पता होना चाहिए कि कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, नेशनल साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट। ठीक है, ये जो चीज़ है, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फ्रेमवर्क टू फाइट साइबर क्राइम। तो अब इसमें जो ये साइबर इकोसिस्टम है, साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट, इसमें सारे साइबर क्राइम्स की रिकॉर्ड रहता है, और उस पर क्या एक्शन लिया और उसको क्या कैसे कैसे डील किया वो सब रहता है। तो बेसिकली इट्स अ इन्वेंटरी या रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल द साइबर क्राइम्स दैट हैव बीन हैंडल्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अभी ये जो है, ये इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C के अंडर है, I4C। तो ये सारी चीज़ों में जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है साइबर क्राइम और साइबर क्राइम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि साइबर क्राइम जो है दैट इज़ अ वेरी सीरियस इशू, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर कनेक्टेड ऑन द इंटरनेट बाय सम और द अदर मैनर। तो आजकल के टाइम में साइबर क्राइम के लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले रही है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल एक स्टार्ट किया था अगेंस्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, ठीक है, गैंग रेप वीडियोस वगैरह। फिर एक इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C दैट वाज लॉन्च्ड। इसका जो टारगेट था ये था कि सारे इश्यूज रिलेटेड टू साइबर क्राइम को एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में डील करने का। तो ये बेसिकली अम्ब्रेला स्कीम है I4C, और जो भी मेजर चेंजेस हो रहे हैं, जो भी मेजर स्कीम्स वगैरह हो रही है, वो जनरली इस I4C के अंडर आ जाएंगी। फिर साथ ही में हमने एक नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर भी लॉन्च किया था। नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, इसका मतलब जो हमारी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि बैंक्स के सर्वर हो गए, हमारे हॉस्पिटल्स के रिकॉर्ड हो गए, डेटाबेस हो गए, हमारा ये मेट्रो ट्रेन वगैरह के जो डेटाबेसेस हैं, जो ट्रेन्स की रनिंग, एरोप्लेन्स की रनिंग को शेड्यूल करते हैं, तो ये सारे भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे। जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी यूनिट के जो सिस्टम्स है जो उसको मेंटेन करके रखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट में ग्रिड डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को मेंटेन करते हैं, दीज आर ऑल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्पेशल सेंटर बनाया गया। ठीक है, अब जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन जो डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उसको सर्ट इन को रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये भी एक स्पेशल बॉडी बनाई गई थी, सर्ट इन। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। साइबर स्वच्छता केंद्र हम लोगों ने लॉन्च किया था, बॉटनेट क्लीनिंग एंड मेलवेयर एनालिसिस सेंटर। इसमें जितने भी मेलवेयर हैं हमारे सिस्टम में, उसको क्लीन करने का टारगेट है। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हैं साइबर सिक्योरिटी के लिए, साइबर क्राइम को कम करने के लिए। तो बस इतना आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से इनिशिएटिव है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा काला आजर। इसमें बेसिकली ये लशमानिया से स्प्रेड होता है। लशमानिया इज द पैरासाइट विच कॉजेज दिस डिजीज, एंड इट इज स्प्रेड बाय द फीमेल इन्फेक्टेड सैंड फ्लाइज। फीमेल इन्फेक्टेड सैंड फ्लाइज को स्प्रेड करती है। इट कैन अल्टीमेटली इम्पैक्ट द बोन मैरो, स्प्लीन एंड लिवर। ठीक है, तो बस इसके बारे में आपको इतना ही पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडियन एस्ट्रोनॉट्स अंडर ट्रेनिंग फॉर गगनयान मिशन। तो अभी रिसेंटली इंडियन एस्ट्रोनॉट्स ने दे हैव बिगन देयर कोर्स इन मॉस्को। मॉस्को में उन्होंने अपना कोर्स स्टार्ट कर दिया है, और आइडिया क्या है कि ये ट्रेनिंग लेके आएंगे मॉस्को से और फिर गगनयान मिशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो अब आपको गगनयान मिशन के बारे में पता होना चाहिए कि ये एक्चुअली में क्या है, इसके प्रोविजंस क्या है। तो ये इसरो लॉन्च करेगा, और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि वी विल सेंड ह्यूमंस इनटू स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ह्यूमंस को स्पेस में भेजना है, एंड दैट ह्यूमन विल ऑल्सो इंक्लूड द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम इंडिया टू
फर्स्ट वुमेन टू गो इनटू स्पेस, ओनली वन वुमेन। अब आपको गगनयान मिशन के बारे में पता होना चाहिए कि ये गगनयान मिशन है क्या। तो अल्टीमेट इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंडिया ह्यूमंस को स्पेस में भेजेगा। ठीक है, दिस इज द मिशन। ये इसरो के अंडर है। तो आइडिया क्या है, ह्यूमंस को स्पेस में भेजना है। अब उससे पहले बहुत सारी अनमैन्ड फ्लाइट्स टेस्ट होंगी, जैसे फर्स्ट और सेकंड अनमैन्ड फ्लाइट्स, ये टेस्ट होंगी आपकी दिसंबर 2021 में और दिसंबर 22 से लेकर 23 में। फिर दिस इज द फर्स्ट ऑफ इसरोज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। इस पहली बार इंडिया जो है ह्यूमंस को स्पेस में भेजेगा। अभी तक सिर्फ यूएस, रशिया और चाइना ने ही ये अकम्प्लिश करा हुआ है कि ह्यूमंस को स्पेस में भेजा हुआ है। इंडिया विल बी द फोर्थ कंट्री टू अचीव दिस टारगेट। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव और ये सब है कि हम लोग ह्यूमंस को जब स्पेस में भेजेंगे तो हम लोग उसको कहीं भेज नहीं रहे हैं मून वगैरह पे, बस वो अर्थ की लो अर्थ ऑर्बिट में रोटेट करेंगे। लो अर्थ ऑर्बिट में जो है दे विल रिमेन देयर फॉर अ फ्यू डेज एंड दे विल देन कम बैक टू अर्थ। ठीक है, दे विल बी सेंट इनटू द ऑर्बिट एंड सेफली रिकवर्ड आफ्टर द मिशन। द पेलोड विल बी अ क्रू मॉड्यूल एंड सर्विस मॉड्यूल। क्रू मॉड्यूल में जो है स्पेसक्राफ्ट विच विल कैरी ह्यूमन बींग्स and service module will be powered by two liquid propellant engines. It will circle the earth at low earth orbit for 5 to 7 days. This is the main idea. Launch vehicle we will be using as GSLV Mark 3, which is a very high capacity geostationary satellite launch vehicle. ठीक है, तो आपको अब GSLV Mark 3 के बारे में पता होना चाहिए और जैसे GSLV और PSLV के बीच में डिफरेंस क्या है और कौन से व्हीकल को हम लोग कब यूज करते हैं। तो दिस आर द बेसिक थिंग्स दैट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस टॉपिक। ठीक है, फिर ये मिशन के बारे में फैक्ट्स हैं, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। सिग्निफिकेंस तो इसकी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इंडिया विल बिकम द फोर्थ कंट्री टू सेंड ह्यूमंस इनटू स्पेस, सो दैट विल प्रूव दैट इंडिया हैज ऑल द टेक्नोलॉजिकल मैन पावर और टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी टू सेंड ह्यूमंस इनटू स्पेस। दूसरा, इट विल ऑल्सो मेक इसरो मच sought after body by international agencies which want to launch their satellite into space। जो इंटरनेशनल एजेंसीज सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजना चाह रही हैं, दे विल कॉन्टैक्ट इसरो एंड इसरो विल गेन अ लॉट ऑफ बिजनेस regarding satellite launches and in the future human launches also. So this is a very good opportunity for ISRO to showcase its technological prowess and it will reduce India's dependence on the foreign cooperation and it will make India आत्मनिर्भर। ये चीज है ही। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये सुपर कंप्यूटर के बारे में है। फुगाको सुपर कंप्यूटर, दिस इज अ सुपर कंप्यूटर विच इज देयर इन जापान। इट इज 100 times the application performance of K supercomputer. Basically this is a new supercomputer which Japan has developed है ना। it has topped the top 500 list, top 500 के लिस्ट के टॉप में आ गया है ये। एंड अब सुपर कंप्यूटर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ अ वेरी फास्ट कंप्यूटर विच इज स्पेशली बिल्ड to do very large calculations in a very small amount of time. So the speed of the supercomputer is measured in terms of floating point operation per second, that is the flops, FLOPS, floating point operation per second. ठीक है, these supercomputers are needed in very complex calculations which involves like weather forecasting है ना and other complex calculations, for example fluid dynamics, calculating the motion and movement of the fluids, then nuclear energy research, then electronics design, analysis of geological data. For now, if a question in the UPSC comes that what is the application of the supercomputers, then computers have a very wide application. They can be used in any place where complex calculations is required। ठीक है, तो you must be open in considering the applications of supercomputer. Whenever you see options, so you will find that supercomputers application is in multiple fields। तो आपको हमेशा ओपन रहना चाहिए सुपर कंप्यूटर की एप्लीकेशन को लेके। इंडिया के सुपर कंप्यूटर कौन से हैं? मिहिर, परम सिद्धि, ठीक है, और प्रत्युष। ये नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। This mission is implemented jointly by the Department of Science and Technology, that is, and Department of Electronics and Information Technology through the CDAC and the Indian Institute of Science. So basically Department of Science and Department of Electronics, they are together implementing this supercomputer mission.
It was launched in 2015, and its objective is to make India as one of the world leaders in supercomputing and to enhance India's capacity in solving grand challenges problem of national global relevance. So its idea is to make better and better supercomputers in India. CDAC के बारे में कुछ information है कि it is a research and development organization of the Ministry of Electronics and Information Technology. ठीक है. Param 8000, the first supercomputer of India, was built by CDAC. So only this information is required from the examination perspective. Now this is related to an asteroid which passed very close to the Earth. So it will pass very close to the Earth in 2021. So therefore it has been termed as potentially hazardous asteroid. Potentially hazardous asteroid. But don't worry, it it won't hit the Earth, because even though it will pass very closely to the Earth, it is still 2 million kilometers away. So it is a very big distance as compared to the diameter of the Earth. So it will not, definitely it will not hit the Earth. Now this term is important, that what is this potentially hazardous asteroid? So potentially hazardous asteroids are those which pass from very close to the Earth. They make a threatening close approach to the Earth. So they are called as potentially hazardous asteroids. ठीक है, this is information about the asteroid. So this is not required from the examination perspective, because the UPSC will not ask the particular details of this asteroid. For information purposes, this is the path of the asteroid. This is our Earth, and this is our Earth basically, this blue one, and this is the path of the asteroid. This is the path of the asteroid, and this is the circle of our Earth. Okay, so basically the asteroid will pass very close to our Earth. So this information is not required from the UPSC or examination perspective. ठीक है. Then there is the significance that basically this asteroid will pass very close to the surface of the Earth. So if we are able to study it, then we can study other asteroids also, and in the future if we can predict the path of any asteroid which is about to hit the Earth. And also we can do some kind of research on asteroids. We can also look towards mining of the asteroids in the future. So all these things are there. So from the asteroid perspective, the main thing is that the main asteroid are found between the orbits of Mars and Jupiter, and this is the orbit. This is called the asteroid belt. In the previous class we have also discussed that about the Kuiper belt. So if you have not seen that, please go and watch that video. ठीक है. तो the main asteroid, the majority of the asteroids are between the Jupiter and the Mars. So this is called the asteroid belt. And if we go outside the solar system, then outside beyond the orbit of the Neptune and Pluto, there will be one more belt, which is called of asteroid, which is called the Kuiper belt. ठीक है. नासा का ये 2-3 मिशन है, यू शुड नो अबाउट दिस, दैट नासा के कौन कौन से मिशन है एस्ट्रॉयड के लिए. एक तो नियर शूमेकर स्पेसक्राफ्ट लैंडेड ऑन यूरोस, फिर दूसरा डॉन स्पेसक्राफ्ट जो कि ये एस्ट्रॉयड बेल्ट तक गया था. फिर नासा का 2016 का ओरेसिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट टू स्टडी एस्ट्रॉयड बेन्नू. फिर ये AIDA एडा एंड डार्ट मिशन. ठीक है. तो ये एडा एंड डार्ट मिशन जो है ये नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसीज का कंबाइंड प्रोजेक्ट है, और इसका हेरा मिशन भी जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और ESA और नासा का कंबाइंड प्रोजेक्ट है ये आपको पता होना चाहिए. फिर डिफेंस में कुछ एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम बनाया है DRDO ने. तो ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम किसके लिए होता है? ये होता है सबमरीन के लिए, सबमरीन के लिए. तो आइडिया क्या है, सबमरीन जब चलती है तो उसको चलने के लिए चाहिए फ्यूल. ठीक है. तो फ्यूल क्योंकि जनरली डीजल होता है हमारा, बट डीजल को जलाने के लिए क्या चाहिए, डीजल को बर्न करने के लिए क्या चाहिए, एयर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए. तो अल्टीमेटली जो डीजल पावर्ड सबमरीन्स होती हैं उनको टाइम एंड अगेन दे हैव टू कम टू द सरफेस टू absorb the air or to take in the air, and they keep the air in the compressed form in the submarine. So this air is used to burn the diesel in the submarine. ठीक है. तो इससे क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है कि सबमरीन को बार बार ऊपर आना पड़ता है. अब सबमरीन जब बार बार ऊपर आएगी तो अल्टीमेटली द एनिमी कैन स्पॉट इट,
है ना, it can detect it, and then the entire purpose of the submarine, that is to stay hidden, that entire purpose is defeated. तो इसके लिए हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जो कि एयर पे डिपेंडेंट ना हो और सबमरीन को बहुत लंबे टाइम तक वी कैन कीप इट सबमर्ज इन द वाटर without depending on the air. So there must be, this is a system, air independent propulsion system is a system which do not require air to be taken in by the submarine at regular intervals. ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने फ्यूल सेल बनाई है, फ्यूल सेल, फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल. तो दिस डज नॉट नीड एयर टू बी to function, and it can function without the presence of air. It can provide electricity or power to the submarine. So this will allow the submarine to stay hidden or underwater for a longer period of time. ठीक है, तो ये इंडिया को आत्मनिर्भर बनाएगा और इंडिया की जो नेवल प्रेजेंस है इन द इंडियन ओशन उसको इंक्रीज करेगा. तो सबमरीन हमारी दूर तक जा सकती है ना, और अपने फंक्शंस वगैरह कर सकती है विदाउट कमिंग टू द सरफेस अगेन एंड अगेन. तो ये बहुत ही अच्छा है इंडियन डिफेंस के लिए. नाउ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि दिस इज अ इंडिया नेवी थर्ड स्टेल्थ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, दैट इज INS करंज. ठीक है, INS करंज जो है वो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है. तो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन क्या होती है? दिस इज अ डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन. डीजल इलेक्ट्रिक होती है, ये डीजल पे चलती हैं और इनमें बैटरीज भी होती हैं. ठीक है, इट इज अ डीजल प्रोपल्शन सिस्टम एंड एडिशनल एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम. ठीक है, एडिशनल एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम क्या है कि इसमें बैटरीज भी होती है, बैटरीज. तो ये जब भी सरफेस पे आती है तो वहां पे ये अपने डीजल को बर्न करके बैटरीज को चार्ज कर लेती है और इन बैटरीज से ये बहुत लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक ये सबमर्ज रह सकती है अंडर वाटर. ठीक है, तो ये एक ऑल्टरनेटिव तरीका है एयर इंडिपेंडेंट बनने का. सबमरीन जो है हमारी एयर इंडिपेंडेंट बन सकती हैं अगर बैटरीज का यूज किया जाए. तो जब भी वो सरफेस पे आएंगी तो अपनी बैटरीज को चार्ज कर लेंगी डीजल को जला के और फिर वो सबमर्ज हो जाएंगी और बैटरीज का यूज करके बहुत टाइम तक अंडर रह सकती हैं. बट इसकी भी एक लिमिटेशन है क्योंकि जो बैटरीज हैं कभी ना कभी खत्म हो जाएंगी और उनको सरफेस पे फिर से आना पड़ेगा. तो अल्टीमेटली वी नीड अ सिस्टम इन विच द सबमरीन डज नॉट रिक्वायर एयर. तो इसलिए एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होती है, न्यूक्लियर पावर्ड. तो उनमें न्यूक्लियर रिएक्टर होता है अंदर और वो रिएक्टर से ही पावर ड्राइव करती है सबमरीन. तो उसको स्पेशल डीजल को जलाने की जरूरत नहीं होती. देयरफॉर दीज सबमरीन्स आर दी वन ऑफ द बेस्ट सबमरीन्स इन इफ वी कंसिडर द स्टेल्थ ऑपरेशन. These submarines can stay underwater for long period of time. They do not require that much amount of air, and also these are very powerful. They can travel fast and long distances. ठीक है, वैसे ही अभी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, जैसे कि स्कॉर्पियन क्लास को इंडिया में कलवरी क्लास भी बोलते हैं. तो जैसे कि INS कलवरी है, INS खंडेरी है. तो ये सारी सबमरीन जो है हमारी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है. INS करंज, वेला, वैगर, वार्कशीट. तो इनको स्कॉर्पियन क्लास क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वहाँ पे जो रशिया है, रशिया की जो सबमरीन है वहाँ पे इसको स्कॉर्पियन बोलते हैं. इसको स्कॉर्पियन क्लास क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फ्रांस में उसका जो नाम है, फ्रांस और जहाँ पे वो डेवलप हुई है तो वहाँ पे उनका नाम स्कॉर्पियन से पड़ा है. इंडिया में इसको कालवरी बोलते हैं क्योंकि इस क्लास की फर्स्ट सबमरीन जो है INS कलवरी है. तो INS कलवरी जो है वो इंडिया की फर्स्ट सबमरीन है इस क्लास की. देयरफॉर इसका नाम इंडिया में कलवरी क्लास सबमरीन पड़ गया है. तो जो उनकी फर्स्ट सबमरीन होती है उसी के नाम पे बाकी उस टाइप की सारी सबमरीन्स को उस क्लास की सबमरीन बोलते हैं. जैसे कि INS कलवरी हो गई तो उसको फर्स्ट कलवरी क्लास सबमरीन बोलेंगे. ठीक है, so this concludes the discussion for this video. I hope that you have learned a lot. If you have liked this video, please share it with your friends so that they also get to learn a lot. We will meet in the next discussion. Thank you.